धर्मपुर पालिका द्वारा लोगों को सुविधा उपलब्ध हो और खेल में रुचि बढ़े, इस हेतु से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की कामगिरी शुरू करने में आई थी। करीबन 1,41,00,000 से इस कामगिरी की शुरुआत उस वक्त राज्य कक्षा के प्रधान रमणलाल पाटकर के हाथों करने में आई थी। हाल में कामगिरी पूर्ण होने आई है, तब ऐसे वक्त पालिका द्वारा बन रहे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाने में आए स्विमिंग पूल की कई टाइल्स उखड़ गई है, जिसको लेकर कई लोगों ने उखड़ी टाइल्स के फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए थे और कामगिरी की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कब्जा पालिका का नहीं है, पर इसके बावजूद पालिका द्वारा पूरे मामले ध्यान रखने में आ रहा है। पूरे मामले भ्रष्टाचार या काम की गुणवत्ता निम्न होगी तो कॉन्ट्रैक्टर की डिपॉजिट जब्त कर सकेंगे। धरमपुर नगरपालिका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सની બાજુમાં જે સ્વિમિંગ પુલ બનાવવામાં આવ્યો છે અત્યારે હાલમાં, એ આજે HP ઝાલા બરોડાના કોન્ટ્રાક્ટર છે અને કામ બીજા કોઈ કરતા હોય એની અંદર, અને આજે સ્વિમિંગ પુલની અંદર ઉદ્ઘાટન પહેલાં એની સ્ટાઇલો બધી ઉખડીને પડી ગઈ છે નીચે, અને આની અંદર જ્યારે અમે રજૂઆત કરી કે ભાઈ માટીવાળી રીતિ છે, આમ તેમ છે, અમે રૂબરૂ રજૂઆત કરી ત્યારે આ લોકોએ અમારું સાંભળ્યું, વિરોધ પણ સાંભળ્યું નહીં પહેલાં તો. હવે સ્ટાઇલ ઉખડીને પડી છે. આજે 1,47,00,000 રૂપિયાનું આ કામ છે. આજે એની અંદર સ્વિમિંગ પુલ બન્યો છે નગરની, સારી વાત છે, પરંતુ એની અંદર ભ્રષ્ટાચાર એટલો મોટો છે કે જેનો કોઈ હદ વટાવી ચૂકી છે. આજે ઉદ્ઘાટન પહેલાં 1,47,00,000 રૂપિયા સ્ટાઇલ ઉખડીને પડતી હોય તો એના બીજું વિશેષ તો કોઈ ભ્રષ્ટાચાર હોય. એ સ્વિમિંગ પુલની અંદર જે ટાઇલ્સો ઉખડી ગઈ છે તે લોકડાઉન સમય પહેલેની ઉખડી ગયેલી છે ને એની અંદર હજુ લગીન આ સ્વિમિંગ પુલ અમને લોકોને કોન્ટ્રાક્ટરે આખો સંપૂર્ણ બનાવી ને અમને હેન્ડઓવર કરવામાં આવેલો નથી. અને એ જે સ્વિમિંગ પુલ જે છે એની અંદર જે ટાઇલ્સ ઉખડી જવાનું જે કારણ છે એની અંદર અમારો કમ્પાઉન્ડ વોલનું કામ અધૂરું હતું, અને એની અંદર સ્વિમિંગ પુલની અંદર જે 3 જગ્યાએ બેન્ડિંગ છે કે પહેલો સ્ટેજ, બીજો સ્ટેજ અને ત્રીજો સ્ટેજ, એટલે જે જગ્યાએ બેન્ડિંગથી જે સ્ટેજ પડે છે ત્યાંથી એર જનરેટ થયેલી છે. જે જ્યારે અમને ધ્યાનમાં આવ્યું માર્ચની અંદર અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું ત્યારે અમે તરત જ કોન્ટ્રાક્ટર સાથે વાત કરી તો એણે એમ કીધું છે કે ભાઈ આ એર જનરેટ થવાના કારણે ઉપરથી તાપ લાગ્યો અને નીચેથી એર બહાર નીકળવાના કારણે આ ટાઇલ્સ જ્યાં જ્યાં બેન્ડિંગ છે ત્યાંથી ઉખડી ગયેલી છે. શ્રી વલસાડ જિલ્લા तहसील पटेल समाज प्रगति मंडल द्वारा वलसाड तहसील कोड़ी पटेल समाज की वाड़ी में आज रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। कोरोना के वक्त लोगों को खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को रक्त की सेवा देने हर साल रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आता है, जिसके अंतर्गत आज रक्तदान कैंप का आयोजन कोड़ी पटेल समाज की वाड़ी में हुआ था। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ रक्तदान कैंप दोपहर 1 बजे तक चला था, जिसमें 100 जितनी बोतल रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखने में आया था और रक्त देने वाले सभी लोगों का सम्मान भी करने में आया था और सभी रक्त देने वालों को एक सम्मान पत्र भी देने में आया था। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, એટલે જેણે રક્તદાન કર્યું છે આજ સુધી એ દરેક રક્તદાતા ને અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા આપું છું કે તમારા જીવનમાં તંદુરસ્ત આરોગ્યમય રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. સાથે સાથે જેણે રક્તદાન કેમ્પ રાખ્યા છે એ કેમ્પના રાખનાર આયોજકોને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે જે વિશ્વમાં છે કોરોના-19ની મહામારી જે ચાલી રહી છે એની સામે લડવા માટે રક્તની પણ જરૂરિયાત ઘણી રહે છે. એ ધ્યાનમાં લઈને પણ અમે પણ વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતિ મંડળ દ્વારા આજ રક્તદાતા દિન નિમિત્તે અમે પણ રક્તદાન કેમ્પનું આપણે આયોજન કર્યું છે. આમાં પટેલ સમાજના નહીં દરેક સમાજના માણસો, યુવાન મિત્રો આજે રક્તદાન કરી રહ્યા છે
દરેક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે કોરોના 19 સામે લડવા માટે જે કામગીરી કરી રહ્યા છે અને એને અનુલક્ષીને આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રીએ જે કામ કરી રહ્યા છે અને લોકો પાલન કરી રહ્યા છે એટલે લોકોને પણ અભિનંદન આપવા ઘટે અને સાથે સાથે હાલમાં આપણે જોયું હશે લોકડાઉન ને થોડું ઘણું આપણે છૂટછાટ કરી છે એ છૂટછાટના લીધે પણ કહી શકાય કે આપણે વલસાડમાં પણ કોરોના 19ના કેસીસ વધ્યા છે એટલે મારી લોકોને અપીલ છે કે હાલમાં જે આપણે ગુજરાતમાં જે આપણને લોકડાઉનનો અમલ કરવા માટે જે સરકાર નિયમ બનાવે છે એનો સંપૂર્ણ અમલ કરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો અને માસ્ક પહેરો, ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, હાથને વોશ કરો સેનિટાઈઝથી, એટલે લોકોને સારી રીતે રહે એ રીતે પાલન કરો એવી મારી લોકોને અપીલ છે. कोरोना की महामारी के बीच इस महामारी का सामना करने राजस्थान एकता मंच द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन करने में आया। देश के कई हिस्सों में यह आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत उपयोगी हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते वापी में टाउन, गुंजन और 4 रास्ता विस्तार में काढ़े का वितरण करने में आ रहा है। सुबह 9 से 11 गुंजन, वापी टाउन और चला में स्टॉल द्वारा वितरण करने में आ रहा है। राजस्थान जैन एकता मंच की तरफ से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे देश में जहाँ विज्ञान कोरोना को हराने के लिए परास्त हो चुकी है, वहाँ देश के कई हिस्सों में ये कोरोना का खिलाफ ये काढ़ा बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए श्री राजस्थान जैन एकता मंच द्वारा आज इस काढ़े वितरण का दूसरा दिन है और वापी टाउन के अलावा गुंजन और 4 रास्ता पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम काढ़ा वितरण करने का कार्य कर रही है और हम चाहते हैं कि समाज के, जनता के हर एक पक्ष तक यह काढ़ा पहुंचे और आपके चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण वापी की जनता को यह निवेदन करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे ये तीनों स्टॉल कल भी जारी रहेंगे, परसों भी जारी रहेंगे। अगर आप सभी से निवेदन है कि काढ़ा का लाभ ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी बढ़ावे। सुबह 9 से 11 हमारे स्टॉल राजस्थान जैन एकता मंच के 3 ही क्षेत्रों में गुंजन, वापी टाउन और चला में 4 रास्ते पर चालू है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत सामाजिक संस्था एक नई पहल आपके साथ की ओर से आज डॉगमर्टी गौशाला परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉकडाउन के समय कोरोना योद्धाओं की भूमिका में समाज सेवी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड की टीम को भी कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड के प्रमुख सुधांशु शेखर एवं उनकी टीम के 55 सदस्य, सार्थक सृष्टि क्रिएशन के प्रशांत कुमार सिंह एवं सोनिया तंवर के साथ ई-पास टीम से सुरेश काले, नंदू शेवाले, कैलाश पाटिल, संतोष पाटिल, राहुल सूर्यवंशी, संतोष थोराटे, संभाली कारकर, अरुण मोर एवं अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर 51 पौधे का रोपण किया गया। कार्यक्रम में स्वप्निल भाई और प्रशांत सिंह ने अपने संबोधन में वृक्षारोपण का महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जानकारी दी। हमारी संस्था को चालू हुए 5/7/2019 में चालू हुआ था और उसको अगले महीने 5 तारीख को 1 साल पूरा होगा। अभी अपने यहाँ हुए कोरोना महामारी जो अपने आई है और उसमें जो अपना लॉकडाउन था, उसमें जो बच्चे हैं स्काउट गाइड के छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया था। तो हमें ये लगा, हमारी संस्था को ये लगा कि भाई अगर ये छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने कलेक्टर ऑफिस से लेके PWD से लेके सिंचाई से लेके
चेक पोस्ट से लेकर सब जगह काम किया है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनका सम्मान होना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। और मुझे पक्का यकीन है कि जितने 51-52 जो बच्चे आए थे उसमें कोई ना कोई तो ऐसा समाज सेवी निकलेगा। जब उन्हें देखेंगे तब कुछ उन पर असर होगा। वही सोच के हमने बोला कि उनको सम्मान करना चाहिए। तो गौशाला बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ उनको बुलाया गया, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया। और गौशाला के जो हमारे इंचार्ज है उनको भी पूछा, उन्होंने तुरंत ही हमें परमिशन दिया। और हम बोले कि इतना अच्छा शुभ अवसर है तो क्यों ना उनके हाथ से ही वृक्षारोपण किया जाए जो हम काम करते हैं। और हमें भी याद रहेगा कि हमने किसी व्यक्ति का, छोटे छोटे बच्चों का सम्मान किया था। सर 52 बच्चे आए थे और उनके सीनियर भी थे, उनका भी अच्छा सपोर्ट था। बात है जो कि दादरा नगरी में इतना शुभ कार्य के लिए हमें दादरा नगरी में चुना गया भारत स्काउट गाइड को। और सही पूछे तो पूरा टीम वर्क होता है और टीम वर्क का काम चल रहा है, जिसमें एक नई पहल आपके साथ अत्यंत सराहनीय काम कर रही है। जब भी जिसका जन्मदिन होता है उसके उपलक्ष्य में वो एक पेड़ लगवाते हैं उनके हाथों से। आज 100 पौधे लगाने का शुभ कार्य हमारे स्काउट गाइड को दिया गया। उन्होंने यही बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो कार्य चल रहा था जिसमें प्रशासन के अंदर पूरे हमारे स्काउट के गाइड के बच्चे समर्थन कार्यालय में, PWD ऑफिस, मामलादार ऑफिस, जिला पंचायत, SMC, बहुत सारे जैसे चेक पोस्ट है, दादरा चेक पोस्ट, पिपरिया चेक पोस्ट, वापछिपा चेक पोस्ट, हर जगह हमारे बच्चे हैं। सर मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी इतना हो रही है। और भी सारी संस्थाएं काम कर रही है। वापी के राता में सालों से आए श्री अजित सेवा ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट की ज़मीन नज़दीक एक कॉमन प्लॉट की जगह पर निर्माण शुरू कर रूम बनाने की तैयारी करते आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया है। जमीन का टुकड़ा हाल विवाद की वजह बना है। इस अंतर्गत गांव के सरपंच मितेश पटेल और सभ्य अनिल धनवाल का कहना है कि यह जगह गुलाब नगर विस्तार की है, जो साल 1988 में एनए हुआ। उस दौरान यहां मंदिर और कॉमन प्लॉट के लिए जगह तय की होने का स्थानिक लोगों ने बताया, जो कि इस अंतर्गत कोई रिकॉर्ड पंचायत में नहीं है, पर जगह है और एनए भी हुआ है, इसलिए इसका रिकॉर्ड DLR में होगा ही, पर इसके लिए मामलतदार कचहरी में जांच करना ज़रूरी है। हाल ट्रस्ट इस जमीन पर अपना दावा करते हैं और स्थानिक अपने कॉमन प्लॉट का, इसलिए इसका उकेल मामलतदार कचहरी से ज़रूरी सबूत मिलने के बाद ही होगा। पर हाल में ट्रस्ट ने पंचायत की मंजूरी लिए बिना ही निर्माण की कामगिरी शुरू कर दी है। निर्माण करने वाले अजित सेवा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी राजेश हस्तमिल शाह ने बताया कि यह जगह उनकी है। हाल कई तत्व विवाद कर रहे हैं। इस जमीन अंतर्गत हमारे पास रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अगर स्थानिक लोग मंदिर या कॉमन प्लॉट के लिए सबूत पेश करेंगे तो हम यह कामगिरी रोक देंगे। स्थानिक लोगों का कहना है कि यह सब जमीन कब्जे करने की तरकीब है। अगर सही में दस्तावेज है तो अभी क्यों नहीं बताते और एक हफ्ते के लिए काम क्यों बंद नहीं करते। हाल हम यहाँ मंदिर और रास्ते का काम शुरू करने वाले थे, इसलिए हमारे पहले इस प्लॉट पर कब्जा किया है, जो कि ज़मीन का झगड़ा दोनों तरफ से बातचीत तक सीमित है, पर ट्रस्ट की हुकूमत के सामने स्थानिकों में रोष है। આ જમીન એને થયેલી છે લગભગ 30 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે, એટલે આપણને એટલું અનુમાન તો નહીં કરી શકીએ, પણ જે જમીન છે એટલે જે કાગળ ઉપર હશે એ આપણને ખબર પડી જશે કે બીજું તો કંઈ છે નહીં કે ભાઈ ઓફિશિયલી, પણ આ જમીનનો મેટર છે એટલે ઓન પેપર તો હોવાનું જ છે। અને એ પણ જરૂરી છે કે ભાઈ આ ટ્રસ્ટ દાવો કરે છે, અહીંયાના લોકલ જે સ્થાનિક છે, અહીંયા જે પરપ્રાંતિઓ એ પણ એ લોકો મંદિર માટે જગ્યા છે દાવો કરે છે, એટલે હકીકત જ્યારે એના પેપર આવશે અને એનું લેઆઉટ પ્લાન આવશે કે આ પ્લોટ શેના માટે ફાળવેલો હતો અને કોઈને વેચેલો છે કે પછી આ મંદિર માટે ફાળવેલો છે કે કોમન પ્લોટ માટે ફાળવેલો છે, જ્યાં સુધી એના જરૂરી પેપર નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને નહીં ખબર પડે। એવું છે કે કોઈ પણ ગ્રામ પંચાયત સ્તરે કે નગરપાલિકા સ્તરે કે જે કંઈ પણ બાંધકામ કરવું હોય એટલે પહેલાં ગ્રામ પંચાયતની એમને મંજૂરી, લોકલ ઓથોરિટીની મંજૂરી લેવી પડે। એવું કંઈ અમારી પાસે લેખિતમાં આજ સુધી આવ્યું નથી ટ્રસ્ટ દ્વારા કે ભાઈ અમે આ જગ્યા ઉપર કે આ પ્લોટ ઉપર અમે બાંધકામ કરીએ છીએ, બરાબર। અને બીજું કે અમારી પાસે કોઈ મંજૂરી માટે કે અમે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાની મંજૂરી હાલ આપેલ નથી। यहाँ पे वर्षों से मंदिर जो है यहाँ पे
वो कॉमन प्लॉट छूटा है। यहाँ पे मंदिर के लिए जगह यहाँ पे छूटा हुआ था। 20 साल या करीबन 30 साल हो गया। हमारी पैदाइश यहाँ की है, उसके पहले बाप दादा से यहाँ पे बैठ रही। जब से यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया यानी किया गया तब से यहाँ पे ये मंदिर की जगह थी, लेकिन आज यहाँ पे ये कब्जा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जगह हमारी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुकाव किया है और हमारे यहाँ पे जितने भी हैं आदमी यहाँ पे गाँव वासियों सबके लिए यहाँ कॉमन प्लॉट छोड़ा गया है। अगर ये कब्जा करेंगे तो हमारा मंदिर का काम अगर बैठाना हो तो कहाँ रखेंगे हम। पंचायत के यहाँ दस्तावेज में उल्लेख, उनको हम बोले कि 5 दिन का दो, हम DLR से निकलवा के करते हैं। ये बोले कि हम 1 दिन का भी टाइम नहीं देंगे आपको, हम यहाँ पे कब्जा करेंगे, जो तुमको करना है करो। विवाद कोई ज नहीं, विवाद अमुक जे माथाभारे तत्वों द्वारा आ विवाद ऊभो करवामां आव्यो छे। एवं कई अहींया विवादित वस्तु ज नहीं। आ जे जग्या है आखी अमने रजिस्टर दस्तावेज थी अमरा राता પાંજરાપોળને મળેલ છે અને એ મુજબ અમારે અત્યાર સુધી આ જગ્યાનું કામ ન હતું, પણ હવે આ જગ્યાની અમારે જરૂર હોવાથી અમે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કર્યું। એટલામાં આ બધા કંઈક માથાભરા 2-4-10 તત્વો આવીને ભેગા થઈને આ અમારું આ જગ્યા છે અને અમારી મંદિરની જગ્યા છે। અમે ચોખ્ખું કીધું ભાઈ તમારી મંદિરની જગ્યા હોય તો મંદિરની જગ્યાનું અમને તમારો પર દસ્તાવેજ પુરાવો જે કંઈ હોય તે આપો, तो हमने कहीं वांधो नहीं। एक्चुअली कैसा है, गुलाब नगर का पूरा जगह है। अभी ज़बरदस्ती गौशाला वाला जो है तो ये ज़बरदस्ती ये जगह पे कब्जा कर रहा है और ये एक्चुअली मंदिर का ही जगह है। पूरा गांव बोला मंदिर का जगह है, कॉमन प्लॉट है ये, पूरा इन्हीं जगह में ये कॉमन प्लॉट है। और इसके वजह से ये लोग सब मना कर रहे हैं कि ये हमारा जगह है, पर वो लोगों के लिए भी लिखान वालों के पास में कागज़ में है, पर सिर्फ जगह के लिए है, रोड के लिए, रोड के लिए, वो जगह के लिए नहीं। पर इसके बाद में भी वो लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं। वो लोग वापी लोकल क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड LCB को जानकारी मिली थी कि वापी के गीताल नगर में आए सरवैया नगर में एक मकान में 3 पत्ती का जुआ कई वक्त से चल रहा है और यहाँ लोग भरूच, सूरत और वलसाड जिला से जुआ खेलने आते हैं। इस माहिती के अनुसार LCB ने रविवार को वापी गीताल नगर सरकारी स्कूल के पीछे सरवैया नगर के आए अपार्टमेंट के रूम नंबर A103 में पुलिस द्वारा छापा मारते 8 लोग जुआ खेलते मिले थे। पुलिस छापा मारते जुआ खेलते लोगों में दौड़धाम मची थी, पर पुलिस की टीम ने जुआरियों को पकड़ लिया था। पुलिस को जुआरियों के पास से 64,450 नगद और टेबल पर दांव में लगाए 9,350 नगद भी मिले थे। साथ ही में जुआरी जो वाहन लेकर जुआ खेलने आए थे वह स्कोडा और दूसरी एक कार मिलकर 4 लाख की कार के साथ कुल 5,27,800 का माल जब्त किया था। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। इस केस में जो फ्लैट में लोग जुआ खेलते थे उस फ्लैट के मालिक शौकत इकबाल मुल्ला को पुलिस ने वांटेड जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना मुक्त रहे दमन में अनलॉक जारी होते एक के बाद एक कोरोना केस बढ़ रहे हैं। तब दमन की दिलीप नगर की दिलीप एम्पायर नामक बिल्डिंग और डांबेल में विशाल बार के पास एक केस आते कुल 2 केस सामने आते पुलिस और आरोग्य तंत्र में दौड़धाम मची है। पुलिस और आरोग्य विभाग द्वारा बिल्डिंग को सील करने में आया है।